Okay, guys, so good morning, one and all. Yesterday we were talking about eigenvalues and eigenvectors, and we evaluated eigenvectors of a certain matrix corresponding to different eigenvalues. Also, we discussed that there are infinite number of eigenvalues corresponding to one eigenvector. There are infinite number of eigenvectors corresponding to one eigenvalue. After that, we had done Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem says that the matrix itself satisfies its own characteristic equation. Okay, and today we will discuss question based on Cayley-Hamilton theorem and application of Cayley-Hamilton theorem. Okay, so I think we should start now. Somebody can verify the PPT is visible or not? Yes, sir. Yes, sir. visible. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, thank you so much. So see very carefully. It's a simple topic, and the question is quite simple. It's totally based on Cayley-Hamilton theorem. So the question is, verify Cayley-Hamilton theorem for this matrix A. Hence or otherwise find A inverse if exist. Also find the matrix represented by a raised to the power 8 minus 5a raised to the power 7 plus 7a raised to the power 6 minus 3a raised to the power 5 plus a raised to the power 4 minus 5a cube plus 8a square minus 2a plus I cube, I3. So guys, there are three parts actually in this question. First is we have to verify the Cayley-Hamilton theorem for this matrix. Second part is if Cayley-Hamilton theorem verifies, then we have to find inverse of that matrix, and after that we will evaluate the value of this matrix expression. अब सीधी सी बात है, इस मैट्रिक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर हमें इवेल्युएट करनी है तो हम a रेस टू दी पावर 8 तो कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, a रेस टू दी पावर 7 तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि a रेस टू दी पावर 8 का मतलब है a को 8 बार मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स को 8 बार मल्टीप्लाई करना. सो इट विल बी क्वाइट लेंथी एंड मीनिंगलेस. तो ऐसा अगर कोई एक्सप्रेशन आपको इवेल्युएट करने के लिए आता है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे, और वो स्ट्रैटेजी एक्चुअली द स्ट्रैटेजी इज टोटली बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी आर ऑब्टेनिंग. So let's start this question. This is the given matrix A, and you can see it's a 3 cross 3 order matrix. So first create characteristic equation. Characteristic equation can be created by you by using the shortcut approach as well for 3 cross 3 order matrix. So determinant of A minus lambda is equal to 0, and this is determinant of A minus lambda I is equal to 0. इसको हमने सॉल्व किया फर्स्ट रो के रेफरेंस में 2 माइनस लैम्डा एंड 0 एंड 1 के कॉरस्पॉन्डिंग. इसे कंप्लीट सॉल्व किया. कंप्लीट सॉल्व करने के बाद में हमें मिली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0. गाइज एक बात ध्यान रखना, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के इवैल्यूएशन की कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी और आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सही नहीं आ रही है, तो इस क्वेश्चन के बाकी जो दो पार्ट हैं वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे.
क्योंकि बाकी जो दो पार्ट हैं वो बेस्ड हैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शुड बी करेक्ट. So characteristic equation is lambda cube minus 5 lambda square plus 7 lambda minus 3 is equal to 0. ठीक है. अब हमारा फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक. अच्छा, वेरीफाई करना है. फर्स्ट पार्ट ये है कि हमें केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है. तो अगर हमें केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है तो इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर लैम्डा की जगह ए पुट कर दिया जाए मैट्रिक्स, तो ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सर यस, सर जितेंद्र ज्वाइन करने का ट्राई कर रहा है. जितेंद्र ज्वाइन करने का ट्राई कर रहा है, मुझे पता है. एंड ही इज़ लेट, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सेप्टिंग हिज रिक्वेस्ट. सो ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i, हमें केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करनी है. इसका मतलब यह है कि हमें इसको जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना होगा. दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस सर. यस सर. तो वेरिफिकेशन का मतलब है हमें इसे ज़ीरो प्रूफ करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करके. इसके लिए हमें ए क्यूब की ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी. तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर इवेल्युएट करेंगे और ए क्यूब इवेल्युएट करेंगे. तो सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो आता ही है. तो ये देखिए आप, ए स्क्वायर इवेल्युएट किया ए इंटू ए. आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जानते ही हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, and then second row first column, second row second column, second row third column, third row first column, third row second column, third row third column. सबको आता है. तो आपका ए स्क्वायर ये बन गया. सिमिलरली ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए क्यूब बन गया आपका, ये वाला ए क्यूब बन गया. यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर. नो सर. ठीक है. अब आप जो वेरिफिकेशन है उसके लेफ्ट साइड में इन सारी वैल्यूज़ को पुट कीजिए. ए क्यूब की जगह ए क्यूब मैट्रिक्स पुट कीजिए. ए स्क्वायर की जगह यहाँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स पुट कीजिए. ए की जगह यहाँ ए मैट्रिक्स पुट कीजिए. और आई की जगह यहाँ पे सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कीजिए. मैट्रिक्स, यस, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है वो 3x3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3x3 होगा, नो डाउट. So identity matrix will be 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. ओके. ये सारी मैट्रिक्स यहाँ पुट करके और आप सिंपल मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगा दीजिए. ये देखिए, ए क्यूब माइनस 5 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ए माइनस 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपको ये पता होगा कि किसी भी मैट्रिक्स से अगर कोई स्केलर या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है. तो यहाँ अगर आप 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 5 इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली 7 इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और 3 इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. ऑपरेट कर दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को तो आपको मिल जाएगी जीरो मैट्रिक्स. इसका मतलब ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इज इक्वल टू 0. केले हैमिल्टन थ्योरम हैंस वेरीफाइड. केले हैमिल्टन थ्योरम हैंस वेरीफाइड. So this is the first part of the question. If anybody has any doubt, then please ask. No sir, no doubt. Sir, Yes. if the characteristic equation comes wrong, then how can we understand it? It's wrong or correct? By verifying this, it will not come zero. नहीं नहीं, आप इतना आगे नहीं जा सकते. आपको बस यही ऑप्शन है कि इट शुड बी करेक्ट.
आप गलत, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सही है गलत है ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर शायंतिना। शायंतिना, इसके लिए आपको यस थोड़ा सा हार्डवर्क ये करना पड़ेगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिली है आपको, दिख रहा है आपको? यस सर। इसको आपको सॉल्व करके इसकी 3 वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, λ1, λ2 एंड λ3। समझ रहे हैं आप? यस सर। अगर इन λ1, λ2, λ3 का एडिशन सम ऑफ आइगन वैल्यूज, अगर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आ रहा है ओके तो इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करेक्ट है। ओके सर। याद है आपको आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज बढ़ाई थी मैंने? यस सर। उसमें एक प्रॉपर्टी ये थी, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। यस सर। if this characteristic equation is incorrect, it's wrong. Okay. If it is wrong, then definitely the sum of eigen values will not be equal to the sum of diagonal elements of the matrix. ओके सर। Okay, Sayantika? यस सर, थैंक यू। Okay. Okay, so this was the first part of the question, verify Cayley-Hamilton theorem. ठीक है। अब सेकेंड पार्ट ये है कि अगर कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो रही है तो वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ए इनवर्स। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये एक्सप्रेशन जो आपने अभी प्रूव किया है, इस एक्सप्रेशन में आप लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय ए इनवर्स बोथ द साइड्स। देखिए, अगर आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब ए स्क्वायर मिलेगा, माइनस 5a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 5a बन जाएगा ये, 7a इंटू ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और i इंटू ए इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद बन जाती है, इसलिए i इंटू ए इनवर्स बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स 0 हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 3a इनवर्स इज इक्वल टू 0। यहां से अब a इनवर्स का वैल्यू आप सिंपल अप्रोच से फाइंड आउट कर लीजिए, बाकी सारे एलिमेंट्स को राइट साइड में ले जाइए और सिंपल a इनवर्स फाइंड आउट कर लीजिए। सो a इनवर्स विल बी 1/3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। नाउ जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। a स्क्वायर आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये a स्क्वायर है, a ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये a है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन तीनों मैट्रिक्स को आप ऑपरेट कर दीजिए और आपको ये a इनवर्स मिल जाएगा। दिस इज योर a इनवर्स। एनी डाउट? No, sir. So this is second part of the question. Third part of the question is, evaluate the value of a raised to the power 8 minus 5a raised to the power 7 plus 7a raised to the power 6 minus 3a raised to the power 5 plus a raised to the power 4 minus 5a cube plus 8a square minus 2a plus I cube। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इतना लंबा एक्सप्रेशन है तो हम a raised to the power 8 ट्रेडिशनल अप्रोच से तो फाइंड आउट करेंगे नहीं, इट विल बी क्वाइट लेंदी, इट्स मीनिंगलेस। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारा जो कैले हैमिल्टन थ्योरम का रिजल्ट आया है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। ये हमारा रिजल्ट था वेरिफिकेशन के बाद में, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इज इक्वल टू 0। एक बार वहां लिख लेते हैं, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर मैं यहां लिख लेता हूं, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर
प्लस 7a माइनस 3i इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, इसको यहाँ रहने देते हैं। अब इस एक्सप्रेशन पे आइए आप, जिसको हमें इवेल्युएट करना है। इसमें देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स को आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट 4 टर्म्स में से a रेज टू द पावर 5 कॉमन आ रहा है। यस सर। तो फर्स्ट 4 टर्म्स में से a रेज टू द पावर 5 कॉमन लिया तो आपका ब्रैकेट में बचेगा a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i। ओके, अब आप नेक्स्ट टर्म्स को देखिए। अच्छा, a रेज टू द पावर 5 को कॉमन लेने के बाद में ये जो ब्रैकेट में बचा है ये वैल्यू ऑलरेडी 0 है, आप देख सकते हैं। a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इज 0 ऑलरेडी, इज नॉट सो? यस सर। तो आप बाकी जो टर्म्स हैं उसमें भी a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं a रेज टू द पावर 4 माइनस 5a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर माइनस 2a, इसमें से अगर a कॉमन ले लेता हूँ, अभी मैं लिख नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं a कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा? ब्रैकेट में a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 2, ये बनेगा माइनस 2i। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें 8a स्क्वायर को आप 7a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। a रेज टू द पावर 4, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, माइनस 5a क्यूब, ये a रेज टू द पावर 4 माइनस 5a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर को मैंने लिख दिया 7a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके, माइनस 2a, मैंने प्लस a एक मैट्रिक्स a ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, माइनस a प्लस a, ये मैंने किया, और बचा क्या अब? प्लस i। ये चीज समझ में आई आपको? ये वाले एक्सप्रेशन को लिखा है मैंने पूरे को, ये वाले को समझ में आया आपको? यस सर। 8a स्क्वायर को मैंने 7a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा है, और माइनस 2a है, एक a ऐड किया है और एक a को सब्ट्रैक्ट किया है, और ये आई है। अब आप टर्म्स लीजिए, a रेज टू द पावर 4 माइनस 5a क्यूब प्लस 7 स्क्वायर और माइनस 3a, ये चारों टर्म्स ले लीजिए जो मैंने अंडरलाइन किए। इन चारों टर्म्स में से आप देख सकते हैं a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लिया मैंने, और अंदर बचा a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i, ये बच गया। और इसके अलावा जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये वाला a स्क्वायर, ये वाला a, और ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको लिख दीजिए, प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एनी डाउट? अब आप देख सकते हैं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। क्या बोल रहे हैं आप? सर आपके साउंड में इको हो रहा है। किसी ने एक सेकंड किसी ने अपना, हाँ अब ठीक है मेरा साउंड? यस सर। हाँ बताइए, क्या डाउट है? ओके सर हाँ बताइए 2a माइनस 8 है, उसका क्या किए? क्या हुआ? 2a माइनस a है ना? 2a माइनस ए नहीं है, माइनस 2a माइनस ए है। तो माइनस 2a माइनस ए का मतलब माइनस 3a हो गया ना, और माइनस 3a में से अगर a कॉमन आ गया तो माइनस 3i बच गया ना।
यस सर। ओके यस सर। ओके। अब ए क्यूब माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i, इसकी वैल्यू 0 है या नहीं है ऑलरेडी? तो ये 0 हो गया। तो फाइनली ये जो बड़ा एक्सप्रेशन था हमारा, उसको हमने फर्स्ट 4 टर्म्स को ये लिखा था, ये 0 हो गया था, ये 0 हो गया। लास्ट जो 5 टर्म्स है मैंने उसको ऐसे लिखा, ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो फाइनली क्या बचा? a² प्लस a प्लस आई। ये देखिए फाइनली ये बचा a² प्लस a प्लस आई। समझ में आया? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस। अब a² का वैल्यू आपको पता है, a का वैल्यू भी आपको पता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको पता है। ये सारी मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर दीजिए और इवैल्यूएट कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये a² प्लस a प्लस 3, इन तीनों को इवैल्यूएट किया तो आपका आंसर आ गया। तो उस पूरे लंबे से एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो आएगा मैट्रिक्स 8 5 5 0 3 0 एंड 5 5 3। एनी डाउट? So guys, this is it in module 1, which is completely based on matrix, right? And what actually the first module is completed. ये फर्स्ट मॉड्यूल काफ़ी सिंपल है, मैट्रिक्स पे बेस्ड है, छोटा है, इसलिए इस मॉड्यूल को पहले लिया जाता है हमेशा। तो आई जस्ट रिवाइज्ड all the things what we have learned in this module. What we have done in the beginning, in this module, in the beginning we just defined the properties of matrix and determinants, and then rank of the matrix, echelon form of the matrix we have discussed. So many questions of rank of matrix we have done. Then we have done system of linear equations, and we had done two types of system of linear equations. One is homogeneous and second is non-homogeneous. And we discussed that there are three types of solution of system of linear equations: unique solution, infinite solutions, and no solution. After that, we discussed regarding eigenvalues and eigenvectors, how we can calculate the eigenvalues and eigenvectors corresponding to matrix, given matrix, and properties of eigenvalues and eigenvectors, relation between eigenvalues and eigenvectors. After that, we had done Cayley-Hamilton theorem, verification of Cayley-Hamilton theorem, and how we can determine the inverse of any matrix by using Cayley-Hamilton theorem, and question based on them. So guys, this is it in this module, and if you have any doubt, then please ask me. No, sir, no doubt. Have you all joined the Google Classroom app, BSc 204? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Anybody in this class who didn't join yet Google Classroom BSc 204? कोई ऐसा है जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो? No, sir, join. Yeah, sir. Okay, so please ask if you have any doubt, otherwise we should leave the class. सर मिड टर्म फर्स्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं सर? मिड टर्म फर्स्ट की टेंटेटिव डेट है 30th March. टेंटेटिव है ये. ओके सर. Any other doubt? Okay then.
See you in the next class on Monday. Thank you very much. Have a good day. Thank you. थैंक यू सर। सर Yes. फ्राइडे को ऑफलाइन क्लास है क्या सर? क्या बोल रहे हैं आप? फ्राइडे को ऑफलाइन क्लास है क्या इस फ्राइडे को? मेरी ऑफलाइन क्लास नहीं है फ्राइडे को. ठीक है सर. भाई ओके, थैंक यू.